coming. Just a minute. Yes, sir. Now it is visible. It is visible, sir. Okay. Thank you very much. So, today's topic is frugal innovations by entrepreneurs. As I already told that frugal innovations like जुगाड़ in Indian terms, कि भाई हम जो भी चीज करते हैं एक जुगाड़ से कुछ चीज बना लेते हैं, तो that is called the frugal innovation. And everybody know actually this diagram I have taken from the net, and it's like very much seems to be good. Like in which it shows that like there is frugal things, flexibility, inclusiveness, and all the things in this Venn diagram. The middle one is jugaad. So everything is whatever the things made up of jugaad and other things, that is called the frugal innovations. And also like frugal innovations comes when the necessity is there. So necessity is the mother of all the inventions. It is well known. So today I will tell you some of the things, some of the stories of these are some of the Indian innovations like Rivigo, Zomato, Naukri.com, Policy Bazaar. Some of the these innovations are from IT Delhi, from where I belong. So these Naukri.com, Policy Bazaar, Besho, ISDN, even Kavach mask in this pandemic area. Also low-cost RT-PCR technology developed by IT Delhi. Also low-cost ventilators. These are like very much appreciated by all over the world. Like India has developed ventilators. UV sanitization machine and Vayu Kavach. These are two of the things which we are working on it. Motorized vehicle fitted with wheelchairs, milking cooling. This is Dr. Ravi Prakash from a small village from Bihar. So these are some of the inventions which Indian have done, and also there are some of the other things. Side by side, we will talk about the stories and we'll talk about them. So, like this is a Jaipuria lag. Everybody, if you type on the Google, you will see like Dr. P.K. Seth is well known for his artificial legs. What he has done, he has thought like, okay, there is a lot of scarcity. How this disabled people can who do not have legs, so how they can help these people. So what they did the plastic made legs, and he, because of this innovation, he got the Magsaysay Award for the community leadership in 1981, and also Padma Shri by Government of India in 1981, the same year. He has the NGO called Bhagwan Mahavir Viklang Sahayata Samiti, which is based on Jaipur, Rajasthan. So this is the world's largest organization which is survey to disabled people. So he has a thought like, okay, I have to give back to the society, and he has a problem. Actually, what Jugaad technology means, you have to have some problem, and then you will thought about the solution of that problem in Indian style. That is called the Jugaad, and that is the frugal innovation by Indian innovators. So this is the good example, Jaipuria legs. This is another example called the Mitti pool. So there is a clay craftsman in Jaipur called Mansukh Bhai Prajapati. What he has done, he has made, he was making some mitti items, but once day he thought that why, because there was scarcity of electricity in villages. So he thought कि okay, ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि हमें ठंडक भी मिल जाए और हमें इसकी इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत ना पड़े. So what he thought the property, he used the property of mitti, our soil.
जब भी हम क्या करते हैं, सॉइल जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे बर्तन बनाते हैं, तो उसे अगर हम जैसे अपने घर भी बनाते हैं, तो घर में क्या होता है, ठंडक रहती है। तो उसने इसी थॉट को लिया और उसने सोचा कि भाई, और प्रॉब्लम क्या थी उसके बाद, प्रॉब्लम ये थी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी गाँव में नहीं है, तो वहाँ पे जो पुराना खाना होता था, उसे कैसे ज़्यादा देर तक हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो वन है, ही हैज़ टू थिंग्स, वन इज प्रॉब्लम एंड वन इज द सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम तो उसका हमें बिल्कुल क्लियर था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उसके पास शेल्फ लाइफ भी बढ़ानी थी फूड की। तो दीज टू थिंग्स आई, तो उसने क्या करा, ये मिट्टी कूल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसने सबसे पहले एक रेफ्रिजरेटर बनाया जो कि मिट्टी से ही बनाया, और उसमें जो टेम्परेचर था, मतलब बाहर के टेम्परेचर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक कम हो सकता था, जिससे कि अगर हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता था उस मिट्टी के रेफ्रिजरेटर के अंदर। देन उससे क्या होता था, हमारा जो फूड था, जो हमारा पका हुआ कुक्ड फूड था, उसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। तो दिस इज द जुगाड़, लाइक मिट्टी से ही बना दिया। तो एक्चुअली जब हम फ्रूगल इनोवेशंस की बात करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ हम ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि आपका कह सकते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आगे भी दूंगा, टाटा नैनो कार। तो टाटा नैनो कार क्या होता है कि उस टाइम हम सभी लोग जानते हैं कि 1 लाख रुपीज़ की उन्होंने डेवलप करी कि 1 लाख रुपए में कार मिल जाएगी। उस टाइम जो कार की कॉस्ट हुआ करती थी, इवन आप ये सोच सकते हैं कि भाई अमेरिका में उस टाइम 50 रुपए कीमत थी $1 की। तो 50 रुपए अगर हम 1 लाख से डिवाइड करें तो रफली $2000 के आसपास आते हैं। तो $2000 में हमारा क्या है कि एक एक मतलब एक उसका किराया भी नहीं जाता है, जो वहाँ का बेसिकली अगर अच्छा सा घर ले लें तो। बट उस अमाउंट में एक कार अगर इंडियन को मिलती है तो कितना एक रेवोल्यूशन था। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ भी जो बनाया कार, उसमें से जो एक्स्ट्रा लेविश चीजें थी वो सब चीज हटा दी, और जो इंडियन को चाहिए थी, जैसे कि उसे एक ऐसा जरिया चाहिए था जो कि उसमें आप बैठ के जा सको और सेफ भी रहे। तो ये होती है आपका फ्रूगल टेक्नोलॉजी। तो टाटा ने क्या करा, एक अपना एक बताया कि भाई उसने उसमें क्या करा, स्टील जो ज़्यादा यूज होती थी उसे कम कर दी, उसका साइज छोटा कर दिया। उसका जो इंजन था, जनरली क्या होता है कि उसे अच्छे से उसे कवर्ड कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी उसके पास, कि एक तो कम कॉस्ट में आपको एक प्रोडक्ट देना था, दैट मीन्स कार देनी थी, ठीक है। तो लो कॉस्ट में चीज़ें को प्रोवाइड कराना और इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, इंडियन लोगों की नीड के अकॉर्डिंग फ्रूगल इनोवेशन। तो जैसे मिट्टी को एक विलेज एंटरप्रेन्योर से, और उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिले उन्हें। उपदेश सर। जी सर। सर बीच में आपकी शायद वॉइस जो है ब्रेक हो रही है, बीच बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या वहाँ? आई डोंट नो, भी मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। आई थिंक हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, थोड़ा सा कुछ मैनेज। अच्छा ओके ओके ठीक है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ एक बार, देखता हूँ चेंज करके ना। ठीक। जी जी 1 मिनट। जी सर, सब लोग वहीं पर होंगे नीचे।
सर कुछ हुआ क्या? जी सर। जी सर। हेलो। श्याम जी, आ रही है आपको आवाज क्या? हाँ आ रही है। एक्चुअली ये यहाँ पे ना, तो मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इंटरनेट। ओके ठीक, कंटिन्यू। हाँ जी जी जी, मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी ये मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर विजिबल है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो हम लोग मिट्टी कूल की बात कर रहे थे, तो मिट्टी कूल के बारे में आपने सुना कि भाई इन्हें काफी अवार्ड्स भी मिले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एंड शी इज गोदावरी सतपुते। शी इज वेरी फेमस। शी हैज डन ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लैंटर्न। जो पेपर की लैंटर्न्स हैं वो बना के पूरे पूरे देश में उन्होंने इस चीज को बेचा, और अपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे टर्नओवर को $50,000 तक उसने बढ़ाया। तो दैट मीन्स एक स्मॉल विलेज से एक छोटा सा उन्होंने आइडिया लिया कि हाँ भाई हम लोग कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं कि पेपर से और अपनी इनकम भी बढ़ा सके, और जिससे कि लोगों के घर में उजाला भी हो सके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को आगे चीज़ें बढ़ा रहे हैं, दैट इज फ्रूगल टेक्नोलॉजीज की वजह से अपना एक तो इनकम भी बढ़ा रहे हैं, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी हेल्प कर रहे हैं। एक दूसरा नाम है निर्मला आजी। ये इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, कि कैसे हम एक कबाड़ को वेल्थ में एक पैसे में बदल सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल निर्मला जी हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेस्ट की, जो भी वेस्ट होती थी चीजें, उन्हें दोबारा री इंजीनियरिंग करा, और उससे बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जिससे कि वो सेल आउट कर सकते थे। तो उनका जो कंपनी एग्रोटेक करके है, और वो क्या बनाती है, वर्मी कंपोस्ट है, बायोगैस है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, कार्बन क्रेडिट्स है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना। तो दीज ऑल आर डन बाय हिज दिस विगम एग्रोटेक कंपनी। So these are the examples of some of the Indian frugal innovators, जिन्होंने एक सोच के एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करी कि भाई ये प्रॉब्लम है और उसका हम कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक और फेमस एग्जांपल है रेमिया जोस का, कि जैसे हम लोग पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से ही वॉशिंग मशीन चल सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो हमें हाथ से ही कपड़े धोने पड़ेंगे। तो व्हाट ही हैज डिसाइडेड कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के भी हम वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। तो व्हाट ही हैज डन, ही हैज पेडल्ड वॉशिंग मशीन बनाई, एंड उसका जो इन्वेंशन है दैट इज very famous. Also, there is a example from one of the Kerala girl. तो वहाँ पे उसने क्या करा कि जैसे हम पेड़ पे चढ़ते हैं, तो पेड़ पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, होता है कि जैसे जैसे उसमें या तो रस्सी से चढ़ना पड़ता है, या एक्सपर्टाइज है ना। तो
उसने एक लड़की ने क्या बनाया, एक क्रेडल बनाई जिससे कि उसको पेड़ पे लगा दो और जस्ट स्टेप्स करो ऊपर नीचे तो वो आराम से पेड़ पे चढ़ सकता है और वापस नीचे उतर सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्रूवेबल इनोवेशंस। जैसे मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको एक चीज बताई थी, कुछ एग्जांपल रिवीको है। तो रिवीको एक कंपनी है, इट इज फाउंडेड बाय आईआईटी दिल्ली alumni, and I know them personally. She has done MBA from she has done BTech from IT Delhi, and then they completed his MBA from USA. Then came back to India, and this is where she has co-founded this company. तो आपको जैसे पता है कि क्या होता है, ट्रकिंग सिस्टम होता है इंडिया में कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है, बट क्या होता है कि दूसरी जगह पे आपको आपने लोड को रख दिया जो सामान था, बट वहां से जब वापस आ रहे हैं तो आपको तो खाली ट्रक आना पड़ रहा है। ठीक है, तो कैसे हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं? तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ी कि वहां से वापस आए और आपको जहाँ पे पेलोड उतारना है आपका, वहां से भी आपको दोबारा एक सामान मिल गया जिससे कि आप थर्ड प्लेस पे आप उतार दोगे। तो आपको क्या होगा, फ्यूल कॉस्टिंग बच गई, आपका जो पर्सन था, जो ट्रक ड्राइवर था, उसकी कॉस्टिंग बच गई, और आपको क्या है, हमेशा एक पेलोड मिलता रहा। तो ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग एफिशिएंट सिस्टम। तो छोटा सा एक आइडिया था कि कैसे हम एक सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बना सकते हैं। ऐसे आपका एग्जांपल है जोमेटो। तो जोमेटो बड़ा फेमस है, सब लोग अपना क्या करते हैं, ऑनलाइन खाना डिलीवर कर देते हैं। आजकल तो क्या कर दिया इन्होंने, जो ग्रोसरी सिस्टम्स हैं और भी चीज़ है, तो उन्होंने क्या करा, एक सप्लाई चेन बनाई। हमारे यहाँ क्या कमी है कि सप्लाई चेन का बहुत प्रॉब्लम है कि कुछ भी चीज़ पहुँचानी हो उसके लिए हमें एक सप्लाई चेन की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने क्या करा, एक इस आइडिया को दिया कि भाई अच्छा, हम एक सप्लाई चेन बना सकते हैं, और उस चीज को ही देखते हुए इन्होंने जिस जोमेटो नाम की कंपनी का स्थापना करी, और आज वो जो कंपनी है वो इंडिया की काफी सबसे बड़ी सप्लाई चेन के रूप में काम करती है। सेम थिंग इज Naukri.com और policybazaar.com। ये हमारे सीनियर्स हैं आईटी दिल्ली के, और इन्होंने Naukri.com करीब 20 साल पुरानी कंपनी है। तो उन्होंने सोचा कि भाई सभी लोग नौकरी ढूंढते हैं। पहले क्या होता था, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके एक अखबार आता था, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता था। ठीक है, बट ये सॉल्यूशन नहीं था। तो उन्होंने क्या करा कि जब इंटरनेट का दौर आया तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई Naukri.com के नाम से, और उस वेबसाइट के थ्रू लोगों को जितनी भी नौकरियां होती थी वहाँ पे उन्हें पता लगती थी, और एक ही प्लेटफॉर्म से वो सब चीज़ वो वहाँ से अप्लाई कर सकते थे। तो एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है। तो यही चीज़ है, आपको अगर पता है कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विद एक लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड द फ्रूगल टेक्नोलॉजीज या इनोवेशन। इसके बाद जैसे मैंने ये मिट्टी टूल बताया, देन गोदावरी के जी, निर्मला, रामिया, देन one of the famous innovation is Flipkart. And Flipkart is not very old thing. It is started in 2007. The two graduates of IIT Delhi, Sachin Bansal and Vinny Bansal, and actually I was in IIT Delhi from 2005 to 2011, and at the same time they were also there. तो 2007 में उन लोगों ने एक आइडिया लिया कि भाई कैसे हम अपनी जो किताबें हैं उससे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई चलो ठीक है, एक छोटा सा ऐप बनाया उन्होंने, और उसके थ्रू किताबें उन्होंने सेल आउट करनी शुरू करी। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये क्या था, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था, और इस आइडिया की वजह से आपको क्या है, शॉप पे भी नहीं जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे आपको क्या है, बुक्स पे डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। तो वो डिस्काउंट्स भी है और आपको एक इजीनेस हो रही है किसी भी चीज़ को खरीदने में। तो इस आइडिया को रेगुलराइज उन लोगों ने करा, और आज ये इंडिया की तो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और मैं इन दोनों लोगों से पर्सनली भी मिला हूँ आईआईटी दिल्ली में, और मतलब आई थिंक 40 इयर्स के आसपास एज ग्रुप के होंगे, एंड दे हैव गॉट दिस
मच ऑफ बिग कंपनी। टाटा नैनो के बारे में मैंने आपने बताया ही कि इन्होंने जो अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें थी उन्हें हटा के इस कार को लॉन्च करा और इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीस तक रखी इन्होंने। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रूगल साइकिल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि अभी एक पर्सनल कहानी है कि मैं 2019 में ब्रिक्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करने ब्राजील गया था विद माय फेलो कलीग्स एंड वन ऑफ द फेलो कलीग Mr. Ravi Prakash. He belongs to a small village from Bihar and presently doing PhD at Bhagalpur. He has completed his PhD from Bangalore. So what he has done, he has जब उसके पास गांव में जाता था तो उसने देखा कि भाई लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जनरली गांव में क्या होता है, कैटल बेस्ड इकोनॉमी होती है कि दूध निकालना है कैटल्स का, उन्हें पालना है, उन्हें चारा खिलाना है, तो दूध बेस्ड जो इकोनॉमी है काफ़ी होती है वहाँ पे। तो लेकिन दूध क्या होता है कि अगर आप दूध निकाल रहे हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी देर तक में क्या होता है 2-4 घंटे में वो अगर खराब हो जाएगा अगर आप उसे उबालोगे नहीं। बट अगर आपको उसे सेल आउट करना है तो आप उबाल नहीं सकते उसे। तो इस वजह से क्या होता था कि काफ़ी दूध जो खराब हो जाता था। तो उसने सोचा कि भाई क्या ऐसी हम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं कि डायरेक्ट एक ऐसी बाल्टी बना लें जिससे कि दूध उसी बाल्टी में निकालें और उसी बाल्टी को हम जो जहाँ पे हमें सेल आउट करना है कंपनी में वहाँ तक ले जाएं और उस टाइम तक वो दूध खराब ना हो। तो उसने एक रिचार्जेबल बाल्टी बनाई और इस बाल्टी को आप चार्ज करिए सिंपल इलेक्ट्रिसिटी से और इसका टेम्परेचर अपने आप ही आउटर टेम्परेचर से 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो आपका जो दूध है वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रूगल टेक्नोलॉजी। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपको मनसुख भाई जगानी है, तो उन्होंने क्या बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ फ्यूल जो एफिशिएंट मोटर बाइक का निर्माण करा था। ठीक है, गोदरेज छोटू कूल या छोटू वॉश करके एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर आता है जो 7.8 kg का है। तो उसमें क्या होता है कि जो एक तो कम आपका कॉस्टिंग लगती है उसकी, ठीक है, एक 43 लीटर कैपेसिटी का होता है और बैटरी से रन हो सकता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि इट कम्स विदाउट ए कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। तो ये क्या है, चिप पे रन करता है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ड्रॉप आउट कर सकती है और रफली इसकी कॉस्ट है 3,250 रुपीज़ के आसपास। दैट मीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे बचेगा और कॉस्ट भी इसकी कम होती है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रूगल इनोवेशन। बिग बाजार के आपने पढ़ा होगा कि बिग बाजार भी इसी टाइप से खुला था। अब ये एक हम लोग भी थोड़ा सा रिसर्च का काम करते हैं, तो उसमें भी कोविड के टाइम में ये हुआ कि भाई सभी लोग अपनी जान बचाने के उसमें थे कि सब लोग मास्क लगाते थे। इवन क्या करते थे कि जहाँ पे गए सैनिटाइजर्स का निर्माण हुआ। फिर ऐसी चीज़ हुई कि भाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने मास्क है उसे अच्छे से सैनिटाइज कैसे कर पाओगे, या कुछ भी फूड प्रोडक्ट है आपने सब्जी ली उसे कैसे सैनिटाइज कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक यूवी सैनिटाइजेशन मशीन बनाई जिसमें कि आप 30 सेकंड, तो हमारे पास आइडिया क्या था कि हमें ऐसी कोई मशीन बनानी है जिससे कि आप उसके अंदर सामान रखो, कुछ भी सामान रखो, वॉलेट है आपका, फोन है, और 30 सेकेंड्स के अंदर या 1 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा उसमें जो भी बैक्टीरिया है या कोविड का वायरस है वो का सारा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हम लोगों के सामने ये बड़ा चैलेंज था कि कैसे बनाएंगे। तो ये जब से कोविड शुरू हुआ था तभी से हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया था और फाइनली अभी हम लोगों ने इसे पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। सून पेटेंट इस पे आ जाएगा। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है जो हमने इस कोविड महामारी के अंदर बनाया। रिसेंटली हम लोग एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं वायु कवच। तो जनरली आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या आपका रेलवे स्टेशन हैं आजकल या डॉर्मेटरीज हैं, सब में एसी लगे होते हैं। इवन हम लोग क्या करते हैं घर में भी एसी लगाते हैं। तो वो जो एसी होता है वो क्या करता है, वो अंदर की हवा को
बाहर फेंकता है और जो ठंडी हवा होती है उसे अंदर फेंकता है। तो उस चीज़ का हमने यूटिलाइजेशन करा, और जैसा मेरा रिसर्च का टॉप फील्ड है वो प्लाज्मा फिजिक्स है, तो मैंने देखा कि भाई हम प्लाज्मा को हम कैसे उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये तो था कि भाई हम उसमें, प्रॉब्लम तो हमारे पास थी बट एक सॉल्यूशन भी हमें खोजना था। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं विद एसी। तो अभी एक मे बी विद इन 1-2 वीक्स में वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा फिल्टर बनाया है जो कि आप किसी भी एसी के इनलेट और आउटलेट पे लगा दें, तो जितना भी घर के अंदर या जिस कमरे में वो एसी लगा हुआ है उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सारा विद इन हाफ एन आवर या 20 मिनट्स वो सारा क्या होगा, वो अपने अंदर खींच के उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दीज आर द कॉल्ड द फ्रूगल इनोवेशन। हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग पहले मास्क के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। बस एक जब देखते थे डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स कुछ हरा सा मास्क लगा के जाते थे जब कुछ ऑपरेशन कर रहे थे। बट जो वायरस होता है, जैसे कोविड वायरस था, वो क्या है, इसका साइज 20 नैनोमीटर्स या 25 नैनोमीटर्स के बराबर होता है, जो कि स्पोर साइज जो होता है आपके मास्क के, उससे भी छोटा होता है। तो आप कुछ भी चीज़ लगाओ वो अंदर इनहेल कर सकते थे। तो ऐसे ही एक हमारे आईआईटी दिल्ली के साथी हैं डॉक्टर विपिन कुमार जी, उन्होंने जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं वहाँ पे, उन्होंने एक आइडिया निकाला कि भाई कैसे हम इस एक मास्क को, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ जो मास्क आते थे फॉरेन कंट्रीज से 800-800 रुपए तक के बिके थे N95 मास्क। बट उन्होंने सोचा कि भाई हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि बहुत ही लो कॉस्ट पे लोगों को उपलब्ध हो सके। तो उन्होंने एक कवच मास्क करके एक बनाया, और इसे काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये सब इंडिया का सबसे लो कॉस्ट मास्क था उस टाइम, जब मास्क 500 या 600 रुपए के बिक रहे थे। तो 30 to 40 रुपीज कॉस्टिंग में ये मास्क बाजार में था। तो दीज आर कॉल्ड द फ्रूगल इनोवेशन बाय इंडियन एक्सप्लोरेशन। ये ISTM के बारे में काफ़ी अभी लोगों ने सुना होगा, और ये 2019 में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडियन साइंस कांग्रेस में लॉन्च करा था। ये प्राइम मिनिस्टर के 100 डेज के प्रोग्राम में भी आता है, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग डेवलप्ड सो फार। इसमें जब हम लोग IIT दिल्ली में PhD कर रहे थे, तो हम लोग भी सोचते थे कि भाई जो डिफरेंट प्रोफेसर हैं उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो बट उन इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सेस सभी के पास नहीं होता था। उन प्रोफेसर के स्टूडेंट कर पाते थे या कुछ उनके जानने वाले ही कर पाते थे। तो हम लोग भी सोचते थे कि भाई कैसे हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए या ऐसा कुछ चीज़ें कर दें जिससे कि जो सरकारी खर्चे से जो इंस्ट्रूमेंट्स किसी ने भी परचेज करे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और कोई पर्सन जो भी रिसर्चर है या स्टार्टअप वाला है उस चीज़ को यूज़ कर सके। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने 2007 से मिलके हमारे साथी डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अनुज है, मैं हूँ उपदेश, तो हम लोगों ने ये सोच रहे थे। फाइनली 2016 से हमने इस पे काम करना शुरू करा, और 2000 इसमें जनवरी 19 में प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च करा। अभी तक इसमें 20,000 इक्विपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर अपलोड हो चुके हैं। 500-550 के आसपास इंस्टीट्यूट्स है, 15,000 से ज़्यादा करीब यूजर्स हैं जो उस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 300 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपने जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे आप बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी ले सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो ए प्लेटफॉर्म फॉर लिंकिंग रिसर्चर्स एंड रिसोर्सेज। ये पेटेंटेड है, IP फ्रेंडली है, इट होल्ड्स, और इसमें क्या है, जितने भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ हैं, इवन एक्सपर्ट्स भी हैं, वो के सारे इस पे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आपको मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक स्कैन कराना है, ठीक है, या डैम कराना है, या कुछ भी ऐसी ECG करानी है, कुछ भी कराना है, तो वो क्या करेगा, उसे ढूंढना पड़ता है कि भाई किसी को फ़ोन करेगा कि भाई अवेलेबल है या नहीं है, बट अवेलेबिलिटी नहीं मिलती थी। तो अब इस पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हैं आप लोग,
इस पोर्टल पे जाके लॉगिन करिए, वहाँ पे अपना राइट अप करिए कि भाई आपको क्या चाहिए, और वो आपके आसपास पे जितने भी टेक्नोलॉजीज होंगी वो आपको दिखाएगा कि भाई यहाँ पे आपके जाके इस टेक्नोलॉजी का यूज आप कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि भाई ये क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई भी ऑनलाइन चीज देख सकता है कि कौन सा इक्विपमेंट है, कब कितना यूज हो रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस, मैन पावर, सपोर्ट सब है में, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसी डुप्लीकेसी को। मान लीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और मेरे पड़ोस वाले लैब में भी सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट उसकी कॉस्ट लेकिन मेरा भी इतना यूज नहीं होता और ना पड़ोस वाले का यूज होता, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट से काम चला सकते थे। और जो गवर्नमेंट का मनी था, जो कि जो 5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, 5 करोड़ का उसके पास है, तो उस चीज को क्या कर सकते हैं, उसको उस 5 करोड़ रुपीस को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से डुप्लीकेसी भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस करता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है मेनी रिसर्चर्स के थ्रू बाय प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर कंज्यूमेबल मेंटेनेंस, मैन पावर, ट्रैवल एंड कंटीजेंसी एक्सेट्रा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि इफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 5 टाइम्स 10 एक मशीन है जिससे कि हम करके देख सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट 8 करोड़ के आसपास आती है। अगर मतलब 5 10 टाइम्स की कॉस्ट कितनी होगी, 40 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो और उस चीज से अगर हम एक ही यूज कर लें तो हमारे पास क्या है, कॉस्टिंग बच जाएगी, और उससे हम क्या है, बहुत सारे स्टार्टअप्स को सैलरी दे सकते हैं, रिसर्चर्स को हम ग्रांट दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो रिडंडेंसी घटाने के लिए और आपका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोग्राम आज शुरू करा। अब इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे लोग यूज करते हैं, कॉमसोल सॉफ्टवेयर है, मैटलैब है, ठीक है, मैथमेटिका है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आपको मिल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और ये सब मैंने आपके साथ शेयर करा। और बेसिकली जो इसका क्रक्स है वो यही है कि आप कभी भी कुछ भी चीज समाज में देखते हो कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस चीज को आप सोचो और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। जैसे कि आप कभी भी वेस्टर्न यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, आपको एक ऐसा करके एक जो इंजन होता है जो पानी खींचता है, उसे एक ठेले पे लगा दिया, ठीक है, या बग्गी पे लगा दिया, और उसे कहते हैं जुगाड़, है ना। तो एक ऐसे करके जुगाड़ जो लो कॉस्ट में बन सकते हैं और इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, और जो लोगों को तुरंत सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रूगल इनोवेशन। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सुना, और होपफुली कि आपको पता भी लगा होगा कि क्या क्या चीज़ है जो कि हम लोग कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो थैंक यू। और किसी का कोई, आई एम अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस। If any student is want to ask any question, you are free to ask any questions. If anybody want to ask question, you can ask. Your mic is now allowed to open. Any student want to ask any question? Hello, Madhusudan Sharma. Yes, sir. You want to ask something? No, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, Upesh Verma, sir, for sharing your nice experience and nice suggestions to the students. Definitely, our students will be motivated and they will have some insight about rural innovation. And because innovation is a prime concern nowadays, a buzzword nowadays, so I think you have given a lot of information to the students. Thank you, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कभी भी कोई पूछना तो सर से मेरा ईमेल आईडी ले सकते हैं, मेरा फोन नंबर ले सकते हैं, और आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ टू हेल्प यू आउट इन एनी मैनर। थैंक यू अंशुल सर, थैंक यू राय साहब, थैंक यू वेरी मच।
वीडियो है और वीडियो